Hello student. In the last lecture we have discussed the chapter in physics reflection of light. Reflection of light we have already discussed about the light, reflection of light. What is light? Light is a source of energy which help find the object. Reflection of light. The bouncing back of light is called the phenomena of the reflection of light. There are two laws of reflection of light. One thing we have already discussed in the last chapter, the reflection of light. First law, incident ray, normal and reflected ray are all in the same plane. First law of reflection, incident ray OA, normal OM and the reflected ray OB all lie in the same plane. And the second law, angle I is equal to angle R, angle I, angle of incident, angle R, angle of reflection. There are two laws of reflection we have already discussed in the last lecture. Now we discuss about the mirror. Is the important things in this chapter is mirror. Mirror is a part of spherical cell. We cut the from the mirror spherical cell. We find the two types of mirror. One type of mirror is called concave mirror. Concave mirror. And the second type of mirror is convex mirror. Convex mirror. Here we discussed about the concave mirror, images formation by the concave mirror, convex mirror, and image formation by the convex mirror. It's the important thing from the point of view of the board examination. 6 figure of concave mirror and 1 figure of convex mirror. What is concave mirror? Concave mirror, where this type of mirror इस उभरे हुए जो ये सरफेस होता है इस पे पॉलिश होती है, सिल्वर या रेड ऑक्साइड से इसकी पॉलिश होती है. एंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अदर साइड, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर. एंड द सेकेंड टाइप मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. इसमें पॉलिश होती है अंदर की साइड पे होती है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो उभरे हुए तल से होता है. दबा हुआ तल और उभरा हुआ तल, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं. दबे हुए तल कॉनकेव मिरर में उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है और रिफ्लेक्शन जो होता है वो दबे हुए तल से होता है. इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में ये कॉन्वेक्स मिरर, इसमें उभरे हुए तल से रिफ्लेक्शन होता है और दबे हुए तल पे पॉलिश होती है. तो इस दो टाइप के मिरर आपके सिलेबस में है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. अब इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है. डेफिनेशंस वैसे पूछी नहीं जाती लेकिन इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. सबसे पहले क्या होता है पोल. पोल क्या होता है? जिस स्फेरिकल सेल से ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो पार्ट है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो चाहे कॉनकेव मिरर का, इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये कहलाता है पोल. इसको क्या कहेंगे? पोल. पोल इज द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय P. It is denoted by P. P. P is the pole of the mirror, which is the center point of the reflecting surface of the mirror. मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग साइड का जो मिड पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा, वो क्या कहलाता है? पोल ऑफ द मिरर. एंड अनदर थिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर.
center of curvature is the center of the sphere from which cut from the mirror is called center of the curvature and it is denoted by C. And there are two definitions you have seen. First, pole and the second, center of curvature. And the third is radius of curvature. The radius of spherical cell which cut from the mirror is called radius of curvature, or you can see the distance between the pole and center of the curvature is called the radius of curvature. It is denoted by R. तो तीन डेफिनेशन आपने पढ़ी, पोल, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड थर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. Pole is the center point of the reflecting surface of a mirror is known as pole of the mirror and it is denoted by P. Center of curvature it is denoted by C and the radius of curvature is denoted by R. And there are and now the sign convention, the rules of the image formation by the mirror. Rules for the image formation. Rules for the image formation. Image formation by the mirror. Image formation by the mirror. रूल्स क्या है? रूल्स मिरर से इमेज बनाने के रूल्स क्या हैं? तो फर्स्ट रूल ये है, देयर आर सम रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर. फर्स्ट रूल, which incident ray parallel to the principal axis after reflecting from the mirror it goes to the focus of the mirror. जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज मिरर पे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है. फर्स्ट रूल, फ्रॉम द कॉनकेव मिरर द पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल from the principal axis P, C, this is the incident ray which is parallel to the principal axis. After reflecting from the mirror it goes from the focus of the mirror. तो फर्स्ट रूल ये है कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी. ये फर्स्ट रूल है. ये इमेज बनाने के लिए इन रूल्स को आपको कायदे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और ये आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि तभी इमेज आप अच्छी तरीके से बना सकते हो. तो फर्स्ट रूल हमने क्या बताया? जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे आती है उस रेस को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे. इस रे को क्या कहेंगे? ये तो आप लाज आपके कलेक्शन में पढ़ चुके हो. ये इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है मिरर पे और तो इसका रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी. ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी. दूसरी रेस क्या है? दूसरी रेस ये है कि जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, कहां से होकर जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, वो उसी से वापस चली आती है. जैसे ये रेस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इसका जाने का रास्ता क्या होगा? ये वापस उसी रास्ते से आ जाएगी. तो सेकंड रूल ये है कि जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी से वापस चली आती है. सेकंड रूल. तो फर्स्ट रूल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
मिरर पे जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो उसी से वापस चले जाएगी। एंड द लास्ट रूल इज जो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर जाएगी, जो रेज जो इंसिडेंट रे फोकस से होकर जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। There are 3 rules for the image formation of by the mirror. One rule, the incident ray which is parallel to the principal axis after reflection from the mirror, it goes from the focus of the mirror. Second rule, which incident ray passes through the center of curvature of the mirror, it goes the same path. And the third rule is which incident ray from the focus after reflection from the mirror, it goes to the parallel to the principal axis. तो 3 रूल्स आपने पढ़े इमेज फॉर्मेशन के लिए। कॉन्केव मिरर आपने पढ़ा कि कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़ा, ये क्या होते हैं। फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे तो कॉन्केव मिरर की इमेज से के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।